When God is blessing you, understand it is a responsibility and not a luxury. If God be for us, who can be against us? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Hear, O Israel, the Lord your God, the Lord is one. हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। Love the Lord your God with all your heart, all your soul and all your mind. अपने यहोवा परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति से प्रेम रखना। My dear children of God, we are entering into the fourth book now. ए मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, आज हम चौथी पुस्तक में प्रवेश कर रहे हैं। The fourth book in the Torah is Numbers. और जो तोरा में चौथी पुस्तक है वह है गिनती। And in Hebrew we call it Bemidbar, और इब्रानी भाषा में उसे बेमिदबार कहते हैं, which means in the wilderness. जिसका मतलब है जंगल में। Before we enter into the Parshat, और पाशात में जाने से पहले let me give you the scripture portions. आपको वेदी के भाग बताता हूँ। It is Numbers from chapter 1 verse 1 to chapter 4 verse 20. गिनती की पुस्तक पहला अध्याय पहले पद से लेके चौथा अध्याय 20वें पद तक। In the book of Hosea, chapter 1 from verse 10 to chapter 2 verse 22. होशे की पुस्तक पहला अध्याय उसका 10वें पद से लेके दूसरा अध्याय 22वें पद तक। And 1 Corinthians chapter 12 from verse 12 to 20. पहली कुरिन्थियों की पुस्तक 12वां अध्याय उसका 12 से लेके 20वें पद तक। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now let us start by reading Numbers chapter 1 verse 1. गिनती की पुस्तक पहला अध्याय पहले पद को पढ़ेंगे। The Lord spoke to Moses in the tent of meeting in the desert of Sinai on the first day of the second month of the second year after the Israelites came out of Egypt. इस्राएलियों के मिस्र देश से निकल जाने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन को यहोवा ने सिनाई के जंगल में मिलाप वाले तंबू में मूसा से कहा। In the desert of Sinai. और उस सिनाई के जंगल में। In the desert of Sinai. और उस सिनाई के जंगल में। Now God is speaking to Moses. परमेश्वर मूसा से बात करते हैं। When the book of Numbers is normally read, और जब गिनती की पुस्तक पढ़ी जाती है, people often read it fastly. और लोग उसे बहुत जल्दी से पढ़ लेते हैं। The reason is, और ये कारण है, the book consists lot of names. क्योंकि उसमें बहुत से नाम लिखे गए हैं। But in spite of that, there is lot of things which happens in the book of Bemidbar. लेकिन उसके बावजूद बहुत सी बातें ऐसी हुई हैं इस पुस्तक बेमिदबार में। There is a spiritual transition of the people. और एक आध्यात्मिक परिवर्तन होता है लोगों में। There are spiritual wars. आत्मिक युद्ध होते हैं। There are struggles and long suffering. बहुत से संघर्ष और सहनशीलता वहाँ पर होती है। And people are learning patience in the wilderness. और लोग सीखते हैं कि कैसे धीरज धरना है। There is a clear spiritual transformation, character transformation of the people. और लोगों का बहुत ही स्पष्ट चरित्र परिवर्तन हम देखते हैं उसमें। And that goes from the second year of wilderness to the 39th year of wilderness. और वह उस जंगली अनुभव के दूसरे साल से लेके 39वें साल तक होता है। God is training all the people, preparing them as a great nation. और परमेश्वर उन सब लोगों को प्रशिक्षण देते हैं एक बड़ा देश बनने के लिए। Salvation is a process. और ये उद्धार जो होता है एक प्रक्रिया होती है। Now, if we think, अगर हम सोचें, the fastest thing that could have happened is salvation and water baptism in our lives. और जो सबसे जल्दी जो बात हुई थी वो था पहले उद्धार और तुरंत उसके बाद बपतिस्मा। But after that, it is long time we are being transformed in step by step process. लेकिन उसके बाद एक एक कदम पर हम और भी शुद्ध होते जाते हैं और हम बदलते जाते हैं। Now just think about the mindset of the Israelites. और इस्राएलियों
के मन के बारे में आप सोचिए। When they are being brought out of Egypt, और जब उन्हें मिस्र से निकाला जा रहा है, what they would have thought, उन्होंने मन में क्या सोचा oh, होगा? I am coming out of slavery. और मैं तो दासत्व से बाहर निकल रहा हूँ, From now on, I am going to be a free person. और आज से मैं बिल्कुल स्वतंत्र हो जाऊंगा। They would have come in that mindset. और ऐसे सोच विचार से आए होंगे, They would have thought of, after this, at least we can relax little bit. और इसके बाद सोचा होगा कि हम कुछ आराम कर पाएंगे। But what has happened? लेकिन क्या हुआ है सच में? And now God is leading them by the pillar of cloud and pillar of fire. और परमेश्वर एक बादल के खंबे और अग्नि के खंबे द्वारा उनकी अगुवाई करते हैं। God has given them mitzvot. और परमेश्वर ने उन्हें मित्सवोत दिया है। You have to follow this. तुम्हें इसका पालन करना है। It looks like they have come out of slavery and again some rules are being put for them. और ऐसा लग रहा है कि वह गुलामी से तो निकल गए, लेकिन उन पर बहुत से कायदे नियम रखे गए हैं। Now God is forming them as a nation. और परमेश्वर उन्हें एक देश के रूप में उनका गठन करते हैं। In the initial stage, और शुरुआत में they are seeing God in the pillar of cloud and pillar of fire. और वह परमेश्वर को एक बादल का खंबा और अग्नि के खंबे के रूप में देखते हैं। But as they go forward, लेकिन जैसे वह आगे बढ़ते जाते हैं, on top of the tabernacle, they were able to see the Shekinah. और उस मिलाप वाले तंबू के ऊपर उन्होंने उस शकीना को देख पाए। वो God revealed in a different form. परमेश्वर ने अलग रूप से अपने आप को प्रकट किया। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, as we go forward in our Christian life, और अपने मसीही जीवन में जैसे हम आगे बढ़ते हैं, we will be able to feel that God is revealing Himself in a different way to us. और हम ये देख पाएंगे कि परमेश्वर अलग रूप में अपने आप को हम पर प्रकट करते हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Let us turn our Bible to the book of Numbers, chapter 1, verse 2 and 3. और गिनती की पुस्तक पहला अध्याय उसका 2 और 3 अभी हम पढ़ेंगे। Take a census of the whole Israelite community by their clans and families, listing every man by name, one by one. You and Aaron are to count according to their divisions all the men in Israel who are 20 years old or more and able to serve in the army. इस्राएलियों की सारी मंडली के कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार एक एक पुरुष की गिनती नाम ले लेकर करना, जितने इस्राएली 20 वर्ष व उसे अधिक अवस्था के हों और जो युद्ध करने के योग्य हों, उन सबों को उनके दलों के अनुसार तू और हारून गिन लेना। God is telling that census has to be taken. और परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें गिनती करनी है। It's the right moment to perform the census. और वह सही समय था कि ये गिनती की जाए। It is like God telling people, take attendance. और ऐसा था कि जैसे परमेश्वर उन्हें कहते कि उपस्थिति लो तुम। For taking census, और ये गिनती करने के लिए in Hebrew we say like this. और इब्रानी में ऐसा कहा जाता है, Sehu harosh, सेहू हारोश, which means lift up their heads. जिसका मतलब है कि उनके सर को ऊंचा उठाओ। Now, a person's head God wants to lift up and God wants to account that person. परमेश्वर चाहते कि वो अपना सर ऊंचा उठाएं और परमेश्वर उनकी गिनती करें। What is lifting up the head? और सर को ऊपर ऊंचा उठाने का मतलब क्या है? You are becoming part of one family. तुम एक परिवार का एक हिस्सा बन जाते हो। You are becoming part of the body of Christ. और तुम मसीह के देह का एक अंग बन जाते हो। It is not that no, I want to be alone. No, not that feeling. और ऐसा नहीं कि तुम अकेला रहना चाहते हो। But we all are one. You become part of one body. और हम सब एक हैं, आप एक ही देह के अंग बन जाते हैं। Turn your Bible to 1 Corinthians chapter 12, verse 12 to 14. पहली कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय 12 से 14 पढ़ेंगे। Yes. Just as a body, though one has many parts, but all its many parts from one body, so it is with Christ. For we were all baptized by one Spirit, so as to form one body, whether Jews or Gentiles, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. Even so, the body is not made up of one part, but of many. क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं
और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। We are part of one body. और हम सब एक ही देह के अंग हैं। Now unity is formed. वहाँ पर एकता होती है। Now one thing we have to keep in mind. एक बात हमें मन में रखनी है, In whichever nation in the world, और किसी भी देश में जो संसार में है, there is a chance of a unity coming up. और एक ऐसी मुमकिन है कि एकता आ जाए। Everybody feels I am part of this great nation. और सब लोग ये एहसास करते हैं कि हम इस देश का एक अंग हैं। But they all the nations stayed under a particular territory. लेकिन सब एक ही सीमा के अंदर रहते हैं। They had land. और उनकी भूमि थी। But what happened for Israel? लेकिन इस्राएल का क्या हुआ? Now unity is being formed, और वहाँ पर एकता तो हो रही है जन्म, but they don't have land. लेकिन उनके पास भूमि नहीं। They are keeping on moving. और वह इधर से उधर वो चल रहे हैं। The pillar of cloud and pillar of fire is leading them. और बादल का खंभा और अग्नि का खंभा उनका अगुवाई कर रहा है। Now as they are come and they are camped in a particular place, और जैसे एक जगह पर आकर उन्होंने अपनी छावनी डाली है, and where Balak is instigating Balaam to curse Israelites. जहाँ पर बालाक है बिलाम को कहता है कि तुम इसराइलियों को श्राप दो। Now what is Balaam saying? और बिलाम क्या कहते हैं? How in Numbers chapter 24 verse 5 we can see that. और गिनती के 24:5 में हम देखते हैं, Yes. How beautiful are your tents, Jacob, your dwelling places, Israel. हे याकूब तेरे डेरे और हे इसराइल तेरे निवास स्थान क्या ही मन भावने हैं। If we have to say this in Hebrew, अगर इसे इब्रानी में हमें कहना है, Mato ohaleka Yakub miskonateka Israel. माटो ओहलेखा याको मिशकोनटे का इसराइल। All they don't have a land. और उनकी अपनी निज भूमि नहीं है। But when Balaam is able to see, लेकिन जब बिलाम देखते हैं, all the tents of Israel are so beautiful and oneness, beautiful sound is coming from the tents. और इसराइल के जो सारे जो तंबू हैं और वहां पर देखते हैं कि सारे डेरे कितने ही मन भावने दिखाई पड़ते हैं। How this could happen? और ये कैसे मुमकिन है? Because God is the commander of the army of the people of Israel. क्योंकि परमेश्वर खुद सेनापति हैं उन सब इसराइलियों के। When God's presence comes in your house, और जब आपके घर में परमेश्वर की उपस्थिति और समूह आता there है, is unity. वहां पर एकता आती है। My dear child of God, मेरे प्यारे ईश्वर की संतान, unity is precious. और एकता बहुत ही बहुमूल्य होती है। So in the process when God was bringing these people from Egypt to Canaan, और इस प्रक्रिया में जब परमेश्वर उन्हें मिस्र से कानान तक लेकर आ रहे थे, what was forming within them was unity. और उनके अंदर क्या कौन सा बात जन्म ले रहा था, वह था एकता। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Let us turn our Bible to the book of Numbers, और chapter 1 and verse 4. गिनती की पुस्तक पहला अध्याय उसका 4था पद पढ़ेंगे। One man from each tribe, each of them the head of his family, is to help you. और तुम्हारे साथ एक एक गोत्र का एक एक पुरुष भी हो जो अपने पितरों के घराने का मुख्य पुरुष हो। Now, army is being formed. और यहाँ पर एक सेना बनाई जा रही है। Now, army to fight whom? और सेना किसके विरुद्ध लड़ने के लिए? In the wilderness, there is nobody to fight. जंगल में तो कोई नहीं है शत्रु, But still, God says an army has to be formed. फिर भी परमेश्वर कहते हैं कि एक सेना को बनाना है। We were staying in South India in Chennai in a particular place long before called Tambram. बहुत साल पहले हम जो दक्षिण भारत है वहाँ पर ताम्बरम नामक एक जगह पर रहते थे। And when we go in train, और जब हम रेलगाड़ी से जाते हैं, there is a place called Pallavaram. वहाँ पर एक जगह आती है जिसका नाम है पल्लावरम। Normally, the military training camp, the military people, army people will come there and do this lot of training. और सेना के लोग वहाँ पर आते हैं और प्रशिक्षण वहाँ पर दिया जाता है। Like shooting and jumping, a long jump and lot of exercises. They will always have their camps there. और वहाँ पर ही उनकी छावनी होती है जहाँ पर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे
कूदना ऊंचाई से और शूटिंग करना, ऐसी बहुत सी बातें दी जाती हैं। We used to think actually there is no war, whom they are going to fight. और उस समय हम सोचते थे कोई युद्ध तो है नहीं, तो किसके विरुद्ध ये जाकर लड़ने वाले हैं। But if a nation is formed, लेकिन अगर एक देश बनता है, irrespective whether war is there or not, और ये बात के बावजूद कि वहाँ युद्ध है या नहीं, an army is very important. एक सेना का रहना बहुत ही मुख्य होता है। Now today we have in Israel we have the IDF, और आज इसराइल में हम IDF है उनके पास, Israeli Defense Force, और वह इसराइली डिफेंस फोर्स है, and they have their Israeli intelligence agency, और उनकी अपनी इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी भी है which is called Mossad. जिसे मोसाद कहा जाता है। Now all this army is formed, और ये सेना बनाई गई है, and the most precious or important thing which is taught for this army और is जो सबसे मुख्य बात इस सेना को सिखाई जाती है Torah. तोरा। Anywhere in the world have you heard like this? क्या कहीं पर भी संसार में आपने ऐसी बात सुनी है? Now they will train people in shooting, exercise, jumping, swimming, so many things. और गोली चलाने में या तैरने में और बहुत सी बातों में तो उन्हें सिखाया जाता है। But the Israeli army gives number one priority for Torah. लेकिन जो इस्राएली सेना है उन्हें सबसे पहला स्थान उस तोरा को दिया जाता है, And they ensure that every officer is given a Shabbat. और ये निश्चित की जाती है कि हर एक अफसर जो है उसे शब्बात दिया जाता I है। could say the only force which focuses on the word of God is Israeli army. और ये जो इस्राएल की सेना है वही है जो परमेश्वर के वचन पर इतना ध्यान देती है। Whenever they have a war situation also, और जब भी कोई युद्ध का काल आता है, they are utmost caring for even the enemies. और वो जो है अपने शत्रुओं के लिए भी इतनी सुधि और इतना सोच रखते हैं। Why? क्यों? Because Torah says love your neighbors as yourself. क्योंकि तोरा में लिखा गया कि अपने पड़ोसी से अपना सा प्रेम रखो। Even a person who is in the military, और जो मिलिट्री में भी हैं, he cannot do theft, he cannot do rape, he cannot do anything wrong. और उसके जीवन में कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए, जैसे चोरी या बलात्कार। And if he does it, he will be out of the army immediately. और अगर ऐसे उसे पकड़ा जाए तो तुरंत उसे सेना से बाहर निकाल देते हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। With a lot of nations trying to attack Israel, और बहुत से देश जो आक्रमण करना चाहते हैं इसराइल पर, even in a war type situation, और एक युद्ध जैसी स्थिति में भी they are keen in focusing on the Torah as the first priority. तब भी वह तोरा पर ही सबसे मुख्यता रखते हैं। My dear child of God, मेरे प्यारे ईश्वर की संतान, why we don't have time to focus on Torah? और क्यों हमारे पास समय नहीं कि हम तोरा पर मनन कर सकें? My dear child of God, मेरे परमेश्वर की संतान, when we tell the gospel to other people, और जब हम सुसमाचार दूसरों को बताते हैं, we have to understand we are also in a war situation. हमें भी समझना है कि हम युद्ध जैसी स्थिति में ही रहते हैं, And our enemy is Satan. और हमारा शत्रु है शैतान। And if we are not able to give focus on the Torah, और अगर हम तोरा पर ध्यान नहीं देते if we हैं, are not giving focus on the word of और God, अगर परमेश्वर के वचन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, we cannot win. हम कभी भी जय नहीं पा सकते। Now Satan is not happy, he just catches a person. और शैतान बस इस बात से खुश नहीं कि सिर्फ एक मनुष्य को पकड़ा है, Satan is very happy catching a person from the army of God. लेकिन परमेश्वर की सेना से किसी को पकड़े तो बहुत ही खुश होता है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Let us turn our Bible to the book of Numbers chapter 2 verse 1 and 2. गिनती की पुस्तक 2 अध्याय उसका 1 और 2 पढ़ेंगे। The Lord said to Moses and Aaron, the Israelites are to camp around the tent of meeting some distance from it, each of them under their standard and holding the banners of their family. फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इस्राएली मिलाप वाले तंबू के चारों ओर और उसके सामने अपने अपने झुंड और अपने अपने पितरों के घराने के निशान के समीप अपने डेरे खड़े करें। My dear child of God, मेरे प्यारे ईश्वर की संतान, now God talks about the banner, और परमेश्वर झंडे के बारे में कहते हैं, a flag
एक झंडा। Now, what is a flag? और एक झंडा क्या होता है? It is a piece of pole and a cloth in it. और एक खंबा और एक कपड़े का टुकड़ा होता है। But we have seen that people are ready to die for the flag. लेकिन हम देखते हैं कि लोग उस झंडे के लिए मरने के लिए भी तैयार होते हैं। We also have a symbol, हमारा भी एक चिन्ह है and that is the cross. और वह है वह क्रूस। We are called to live for Christ. हमें बुलाया गया कि हम मसीह के लिए जिएं। Now here in Numbers chapter 2 verse 1 and 2, और यहाँ पर गिनती में 2 उसका पहले और दूसरे पद में now God says, परमेश्वर कहते हैं the Israelites are to camp around the tent of meeting. और इस्राएलियों को मिलाप वाले तंबू के चारों ओर अपनी छावनी डालनी है। Now the tabernacle is there और वहाँ पर मिलाप वाला तंबू है on east, west, north, south. और पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण है। The people have to surround and they have to walk. और लोगों को उसके इर्द गिर्द वैसे ही चलना है। Now the Jewish people have a flag और यहूदी लोगों का एक झंडा होता है which is white and blue. जो सफेद और नीले रंग का है। White refers to the priest और सफेद जो याजक को दर्शाता है and blue refers to the king. और नीला जो राजा को। Now it is the flag is like a big prayer shawl. और ये जो झंडा है एक बड़े प्रेयर शॉल के समान है। What does it signify? और ये क्या दर्शाता है? Prayer shawl represents the word of God. और ये प्रार्थना का शॉल वह परमेश्वर का वचन प्रकट करता है। My dear child of मेरे God, प्यारे ईश्वर की संतान, when we are working for Christ, और जब हम मसीह के लिए काम करते हैं we have an unseen enemy. हमारा एक शत्रु जो नहीं दिखाई पड़ता है And that unseen enemy is Satan. और वह शैतान है जो नहीं दिखाई देता बाहर। If we have to overcome that, और अगर हमें उस पर विजय पानी है our life has to be surrounded by the tabernacle. और हमारा जीवन को उस मिलाप वाले तंबू को घेर लेना है। Or in other words, if I have to say, या अगर दूसरे शब्दों में कहें, as God says in Numbers 2, 1 and 2, और जैसे गिनती के 2 उसके 1 और 2 में परमेश्वर कहते हैं the Israelites are to camp around the tent of meeting. और इस्राएलियों को उस मिलाप वाले तंबू के इर्द गिर्द ही उन्हें रहना है। Meaning is, उसका मतलब ये है tabernacle is there, और मिलाप वाला तंबू वहां पर है they are on all sides. और वे सब दिशा में हैं। In our life, हमारे जीवन में God's word should be there. परमेश्वर का वचन होना चाहिए We are surrounded on all sides. और हमें सारे तरफ से घेर लेना है उसे। If it not happens like और that, अगर ऐसा नहीं होता है it is not possible for us to have victory in our life. और हमारे जीवन में विजय पाना मुमकिन नहीं It is not possible for us to overcome Satan. और उस शैतान पर जयवंत होना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। You and me are in the army of Christ. आप और हम परमेश्वर की सेना में हैं। Is the word of God center point of your life? और क्या परमेश्वर का वचन आपके जीवन में मध्य स्थान में है? Or is your life built around a denomination? या आपका जीवन ऐसे एक मजहब और एक समुदाय के इर्द गिर्द ही रहता है? Is your life built around a person? और क्या आपका जीवन एक मनुष्य के इर्द गिर्द रहता है? This is time to think about ourselves. और ये समय है कि अपने आप के बारे में हम सोचें। God focuses on an army. परमेश्वर एक सेना पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। As Israelites have come out of Egypt, they are going into Canaan. He focuses on an army. और जैसे इस्राएली मिस्र से निकलकर कनान की तरफ जाते हैं, परमेश्वर एक सेना के बारे में वह मन लगाते हैं। We are on our way to eternal Canaan. और हम भी अपने अनंत कानान की तरफ जा रहे हैं। Are you a part of that army? और क्या तुम उस सेना का एक भाग हो? Shall we close our eyes? क्या हम अपनी आंखों को बंद करेंगे? Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, thank you for this teaching from Bemidbar. और बेमिदबार से इस सीख के लिए धन्यवाद करते हैं। We are in your army. और हम आपकी सेना में हैं परमेश्वर। You are our banner, Lord. और आप ही हमारा झंडा है। The word is our banner. और वह वचन हमारा झंडा है। Help always that our life is, you are, the word of God is the center of our life. हमारी मदद करें कि आपका वचन ही हमारे जीवन का मध्य स्थान हो परमेश्वर। Bless everyone who has seen this. जो भी इसे देख रहे हैं उन्हें आप आशीष करें। Help them to be a part of this great army. और इस बड़ी महान सेना का एक भाग बनने के लिए हर एक को आप मदद करें। As we plunder hell and populate heaven. और जैसे हम उस नरक में से उसे नाश करके हम स्वर्ग को और भी बढ़ाते हैं, We give you all the glory, Lord. आपको ही सब महिमा देते हैं परमेश्वर। In Jesus' matchless name,
we pray unto thee, Father. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं स्वर्ग। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Praise the Lord. जय मसीह की। My dear children of God, मेरे प्यारे ईश्वर की संतान, we have to thank God that God has chosen us to be in His army. हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि हमें चुना ईश्वर ने अपनी सेना में रखने के लिए। Let the word of God be the center of your life. और परमेश्वर का वचन ही आपके जीवन का मध्यस्थ हो। Let us plunder hell and populate heaven. और उस नरक को विनाश करके हमें स्वर्ग में और भी आगे बढ़ना है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करें। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करें।